السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ کیئر سے آپ کا میزبان طاہر یعقوب۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے بیماری کیا ہے، بیماری کیسے آتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو متاثرہ جسم متاثر ہوتا ہے، کسی نہ کسی فنکشن میں خرابی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیماری کا نام دیا گیا ہے۔ یا ہم اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں تشخیص ہوتی ہے کہ ہمارے اس حصے میں خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ ایک بیماری ایسی حالت ہے جو خلیوں، فنکشن اور اعضاء کے معمول کے کام کو بگاڑ دیتی ہے، یعنی ان میں کسی نہ کسی حصے میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ بیماریوں کو اکثر طبی حالتوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو ان کی علامات اور علامات کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ بیماری کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، یعنی انسانی جسم میں کوئی بھی تبدیلی آ جائے، جسم کا حصہ اپنا کام سر انجام نہ دے سکے، اس میں خرابی پائی جائے، اس کیفیت کا نام بیماری ہے۔ جب کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں جو واضح تبدیلی نظر آتی ہے اس کو علامات کہتے ہیں۔ علامات کے ذریعے سے بیماری کا کافی حد تک پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی بیماری ہے۔ بیماری عام طور پر کسی ایک وجہ کی بجائے کسی عوامل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے بدلے میں جسم میں کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، یعنی ہمارے جسم میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں، یعنی فنکشن ہمارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جیسے کام کرنے کو دل نہ کرنا، بوجھل پن۔ اس حالت کو بیماری کہتے ہیں۔ یعنی انسانی جسم میں کوئی بھی بگاڑ آ جائے، کوئی جسم کا حصہ ٹھیک طرح سے کام نہ کرے، اس میں بیماری کی شدت آ جائے تو اس حالت کو بیماری کا نام دیا گیا ہے۔ بیماریاں مختلف نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں اور نارمل بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جسم میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، بلڈ پریشر کا لو ہونا، ٹانگ میں درد، بخار ہونا اور اسی طرح نزلہ زکام ہونا بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ کرونک بیماریاں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح پیچیدہ بیماریاں ہوتی ہیں، کافی پرانی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ خطرناک بھی ہوتی ہیں، کچھ ایکیوٹ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ اتنی خطرے والی نہیں ہوتی، یعنی 1 2 دن 3 دن یا 5 دن میں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ دنوں، مہینوں اور سالوں بلکہ لانگ لائف کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے جسم میں، انسانی جسم میں کسی قسم کی علامات ظاہر ہو جو کہ ایک نارمل حالت سے باہر ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنی تشخیص کرنی چاہیے، یعنی ہمیں اپنے بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی میڈیسن لینی چاہیے تاکہ ہماری بیماری کی شدت یا ہماری بیماری ختم ہو سکے۔ اس وجہ سے یعنی بیماری کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ہی ایک نارمل جسم میں کسی قسم کی پیچیدگی ظاہر ہو جائے، کسی قسم کا فنکشن یا رد عمل ظاہر ہو جائے تو اس حالت کو بیماری کہتے ہیں۔ بیماریوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے اور درجہ بندی سے اس قسم کی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی اقسام ہیں درجہ بندی کی۔ اس سے مراد متاثرہ عضو یا ٹشو، دل کی بیماری اناٹومک، یعنی اس کی درجہ بندی کے لحاظ سے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے عروقی بیماریاں، سینے کی بیماریاں، معدہ اور پیٹ کی بیماریاں یہ اناٹومک درجہ بندی میں آتی ہیں۔ جسمانی درجہ بندی میں اس قسم ایسی بیماریاں بھی شامل ہوتی ہیں جو کسی عمل یا فعل کو متاثر کرتی ہیں، جیسا میٹابولزم، انضمام یا سانس، شوگر وغیرہ۔ نمبر 3 پیتھولوجیکل بیماریاں۔ اس قسم میں بیماریوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کینسر کا ہونا، خلیوں کی بے قابو نشوونما، جیسے کینسر کی خصوصیات پائے جائے، یعنی کرونک بیماریاں۔ نمبر 4 سوزش کی بیماریاں یا الرجک بیماریاں۔
वबाई अमराज इसमें ज़्यादातर शामिल होती हैं। इस दर्जा बंदी की किस्म में वबाई अमराज से मुराद एलर्जी, ताउन, नज़ला, ज़ुकाम, वायरल बीमारियां हैं जो वायरल या बैक्टीरिया की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। बीमारियां दो तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज़। इन्फेक्शन वाली बीमारियां, गैर इन्फेक्शन वाली बीमारियां। इन्फेक्शन वाली बीमारियां वो हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। इन्हें मुतअद्दी बीमारियां भी कहा जाता है। ये आम तौर पर मैक्रोजीन्स की वजह से होती हैं, जिन्हें पैथोजीन्स कहते हैं। फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, रेक्टिस या प्रोटोजान और कीड़े। जब मुतासरा शख्स जिस्मानी रतूबत खारिज करता है तो पैथोजिन्स मेज़बान वहाँ से बाहर निकल सकते हैं और एक नए शख्स को मुतासर कर सकते हैं। इस तरह खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चिकन पॉक्स वगैरह इस तरह वबाई अमराज में हेपेटाइटिस, डेंगू, मलेरिया बुखार, ये सारे वबाई अमराज में आते हैं। यानी बैक्टीरियल या वायरल बीमारियां एक से दूसरी जगह यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में बाइज़ी हरकत कर सकती हैं और दूसरे शख्स को मुतासर कर सकती हैं। गैर मुतअद्दी बीमारियां, ये बीमारियां भी पैथोजेंस की वजह से होती हैं, लेकिन दीगर अवामल जैसे ग़िज़ाइयत की कमी, फ़र्द की जिनस और तर्ज ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, लाइफ स्टाइल चेंज करना इस बीमारी को मुतासर करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतस, कैंसर शामिल हैं। वो दूसरों तक नहीं फैलते, वो एक ऐसे शख्स के अंदर रोकते हैं। बीमारी अल्ज़ाइमर की बीमारी, दमा, मोतिया बंद बाल की बीमारियां, यानी एक ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में कन्वर्ट कम होती है, लेकिन ख़ानदानी यानी जीन्स की वजह से जा सकती हैं। जिस तरह अगर एक ख़ानदान में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो हो सकता है कि उसी ख़ानदान के लोगों में ब्लड प्रेशर के मरीज़ पाए जाएं। एक ख़ानदान में शुगर के मरीज़ हैं, हो सकता है कि उनके बच्चों में भी शुगर के असरात हो सकें। ग़िज़ाइयत की कमी, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मोटापे का शिकार होते हैं, तो हो सकता है कि उनके बच्चों में भी मोटापे का असर हो जाए। इसी तरह जो ग़िज़ाइयत कम यानी दुबले पतले लोग होते हैं, उनके अक्सर बच्चे भी दुबले पतले होते हैं। यानी इनका जीन्स से ख़ास ताल्लुक़ होता है कि वरासत में ये चीज़ें मिलती हैं, एक दूसरे बैक्टीरिया से फैलती नहीं हैं, वरासत में मिलती हैं। इस तरह बीमारियों की और कैटेगरी भी हैं। ये बुनियादी डिजनरेटिव डिजीज़, ये बुनियादी तौर पर जिस्म के अहम अज़ा की ख़राबी की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से खुलियात की ख़राबी होती है। मिसाल के तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, इस तरह गुर्दों की बीमारी, तंज़िली बीमारियाँ आम तौर पर बच्चों और बूढ़े लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। डिजनरेटिव डिजीज़, एलर्जिक डिजीज़ रद्द अमल इस वक्त पैदा होता है जब जिस्म यानी गैर मुल्की मादों के लिए इंतहाई एहसास होता है, जिन्हें एलर्जी कहते हैं। यानी एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक जगह से दूसरी जगह बाइज़ी जा सकती है। यानी अगर मौसम में पोल्यूशन ज़्यादा है, डस्ट ज़्यादा है, गर्दो गुबार है, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हवा में फिर रहे हैं जिनकी वजह से वो एलर्जिक बीमारियां बनने का हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर कीड़ा एक इंसान को काट लेता है तो उससे भी एलर्जी हो जाती है, या वबाई अमराज से यानी डस्ट स्मेल की वजह से भी एलर्जिक बीमारियां हो जाती हैं। हार्मोनल बीमारियां यानी डेफिशिएंसी डिजीज़, ये हार्मोन्स, मादनियात, ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन की कमी की वजह से भी होती हैं। इनको हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी किसी भी विटामिन की कमी की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं वो इस वजह से होती हैं। ग्वाइटर डिजीज़, ये ग़िज़ाई नाली गर्दन के दीगर अज़ा को रोककर थायराइड गदूस का गैर मामूली इजाफा करती हैं। ग्वाइटर डिजीज़ यानी ये नेक के करीब तर होती हैं, यानी इनका थायराइड का ख़राबी की वजह से होती, यानी गुल्लड़ बन जाते हैं जिसम में ख़ासकर गर्दन के नीचे होते हैं, और जिसम के किसी और जगह पर भी छोटे छोटे ग्वाइटर बन सकते हैं। ब्लड डिजीज़, खून की बीमारियां, खून में प्लाज्मा, सफ़ेद खून के खुलिये, प्लेटलेट्स और खून के सुर्ख खलियात
का बढ़ जाना और इसमें जो दूसरे सेल होते हैं उनका नॉर्मल या अब नॉर्मल हो जाना, जिससे अब नॉर्मल प्लास्टिक सेल भी कहते हैं, यानी कैंसर के सेल भी देखे जा सकते हैं। इस वजह से बीमारियों की कई दर्जा बंदी की जाती है, यानी इसकी कई ज़्यादा अक़साम हैं, यानी किसी भी फंक्शन की ख़राबी की वजह से हो सकती हैं, गैर मुतद्दी बीमारियां भी हो सकती हैं, खुराक की कमी की वजह से भी हो सकती हैं, फंक्शन की ख़राबी की वजह से भी हो सकती हैं, या जीन्स की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती हैं, या विरासत में भी ये बीमारियां मिलती हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी हम कोई अपने आप में ऐसी हालत देखें, यानी ऐसी अलामात देखें कि हमें लग रहा है कि हमारे जिस्म में कोई ना कोई बीमारी आ रही है, यानी हमारी नॉर्मल हालत चेंज हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम इसकी तशख़ीस के लिए अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि ब्लड टेस्ट से कंफर्म हो जाए कि हमारे जिस्म में बीमारी है तो कौन सी है। बीमारी के बाद फिर इसकी कैटेगरी ट्रीटमेंट की आती है। तो जब तशख़ीस सही होगी तो इसके बाद ही बीमारी का रोकथाम के लिए हम इसका सही ट्रीटमेंट कर सकेंगे। हमने ऐसे देखा गया है कि बीमारी आती है तो हम उसकी तशख़ीस नहीं करवाते, जिसकी वजह से बीमारी वक्ती तौर पर दब जाती है, उसके बाद बीमारी दोबारा फिर शुरू हो जाती है। यानी ऐसे समझ कि बीमारी को हमें जड़ से उखेड़ कर बाहर फेंकना चाहिए। अगर बीमारी अंदर ही अपनी जड़ें लगा लेती है तो इंसान ठीक नहीं होता, वो चंद दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर वही उसकी अलामात शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी हमारे जिस्म में किसी किस्म की गैर मामूली तब्दीली रूनमा हो तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम इसकी तशख़ीस के लिए अपने ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजी टेस्ट या फर्दर कोई भी इसकी तशख़ीस के लिए टेस्ट बनते हैं तो हमें अपने टेस्ट करवाएं। उसके बाद किसी अच्छे मौलवी से इसके बारे में जानिए कि हमारे जिस्म में बीमारी कौन सी है, तो हम इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाएं ताकि हम अपने आप को सेहतमंद रख सकें। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, अपनी सेहत को चार चांद लगाएं ताकि बीमारियों से बच सकें और अपना ज़्यादा पैसा भी बचाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी सेहत के बारे में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी आहिस्ता बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वही बीमारी पे हमें हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि जैसे ही बीमारी हमारे जिस्म में नमूदार हो तो हम सबसे पहले इसकी तशख़ीस करवाएं और उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और परहेज़ करें और अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें, यानी जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं वो हमें अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना चाहिए, हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, यानी फल और सब्जियों पे ज़ोर ज़्यादा देना चाहिए और विटामिन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम बीमारी से बच सकें। अब मैं इजाज़त चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।